بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں حیدرآباد کے قریب کوٹری ریلوے ٹریک پر دھماکہ، خورشید کالونی کے قریب ٹریک کا 1 فٹ کا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ دھماکے سے اب ٹریک متاثر ہوا ہے، ٹرینوں کو کوٹری اور جامشوروں پر روک لیا گیا۔ پولیس اور رینجرز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حیدرآباد کے قریب کوٹری ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا ہے، خورشید کالونی کے قریب ٹریک کا 1 فٹ کا ٹکڑا ٹوٹ گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف حیدرآباد ناصر شیخ سے۔ جی ناصر شیخ، مزید بتائے گا۔ جی، کوٹری ریلوے اسٹیشن خورشید کالونی کے قریب جو ہے دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، جس میں دہشت گردوں نے ٹرین کی پٹری پر نصب بم کو جو ہے بلاسٹ کیا، جس کے نتیجے میں 1 فٹ کا ٹکڑا جو ہے ٹرین کا پٹری کا جو ہے وہ اکھڑ گیا۔ اور جو ہے اس واقعے کے بعد ریلوے کے حکام، ریلوے پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس اور رینجرز نے جو ہے وہ پورے علاقے کو کارڈن کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف شہروں میں جانے والی ٹرینیں کوٹری، بلاری اور حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پہ روک دی گئی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، تاہم اس میں ابھی جو ہے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے کہ اس میں کون سا گروپ ملوث ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ بیورو چیف حیدرآباد ناصر شیخ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ صوبے کے 18 اضلاع میں انتخابات کے لیے میدان سج گیا ہے۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ اورکزئی، شمالی اور جنوبی وزیرستان، سوات، شانگلہ اور مالاکنڈ سمیت 18 اضلاع میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ایبٹ آباد اور سوات میں سٹی میئر کی نشست پر بڑے مارکے ہوں گے۔ بلدیاتی الیکشن میں 28,000 سے زائد امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ تحصیل میئر اور چیئرمین کی نشستوں کے لیے 651 امیدوار ہیں۔ 80,57,000 ووٹرز کے لیے 6,000 پولنگ سٹیشنز قائم، 1,500 سے زائد پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ پولیس کے ساتھ ایف سی کے دستے بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ وفاقی حکومت کے مرکز سے پہلے پی ٹی آئی کے مضبوط گڑھ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ آج ہو رہا ہے۔ اس مرحلے میں 18 اضلاع کی 65 تحصیلوں میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ 1,500 سے زائد پولنگ سٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں۔ 18 اضلاع سے مجموعی طور پر 1,318 کونسلرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ پہلے مرحلے میں تحریک انصاف امیدوار بڑی تعداد میں ہار گئے تھے اور جے یو آئی نے برتری حاصل کی تھی۔ 18 اضلاع 65 شہر، خیبر پختونخوا کا انتخابی میدان سج گیا۔ 28,020 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ تحصیل میئر اور چیئرمین کی نشستوں کے لیے 651 امیدوار۔ ولیج اور نیبرہڈ کونسلز میں جنرل نشستوں پر 12,980، مزدور اور کسان کی نشستوں پر 6,451، نوجوان کی نشستوں کے لیے 5,213 امیدواروں میں مقابلہ۔ اقلیتی نشستوں کے لیے 57، خواتین نشستوں کے لیے 2,668 امیدوار۔ ولیج اور نیبرہڈ کونسلز میں جنرل نشستوں پر 351، خواتین نشستوں پر 533، مزدور و کسان کی سیٹس پر 151، نوجوانوں کی نشستوں پر 233 اور اقلیتی نشستوں پر 50 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ چناؤ کے لیے 80,57,000 افراد ووٹ ڈالیں گے، جبکہ 6,176 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 2,326 پولنگ اسٹیشنز حساس، 1,646 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں ملک کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین موڑ آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج دن 4 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 24 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کو چوتھے نمبر پر بحث کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ شہباز شریف عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث کا آغاز کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس پہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں حساس خط کو زیر بحث لانے کی پیشکش پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں نمبر گیم حتمی مرحلے میں داخل۔ اپوزیشن کو حکومت پر 12 ارکان کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم کے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کے بعد اپوزیشن کو 176 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی۔ حکومت کے پاس 164 ارکان رہ گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ایک رکن عبدالاکبر چترالی اب تک غیر جانبدار ہے۔ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کی تازہ ترین تعداد کیا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ عدم اعتماد کی تحریک نے حکمران اتحاد ہی نہیں بلکہ پارٹیاں بھی توڑ دی ہیں۔ مسلم لیگ کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی بطور جماعت ٹوٹی، جبکہ جمہوری وطن پارٹی ایم کیو ایم آزاد اراکین اتحادی نہ رہے۔
हुक्मरान इत्तेहाद को देखें तो इस वक्त कौमी असम्बली में PTI के कुल अरकान 155 हैं। मुस्लिम लीग काफ के 4, GDA 3, अवामी मुस्लिम लीग का 1 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 1 रुकन को शामिल करके इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 164 बनती है, जबकि वजीर आजम को 172 अरकान का एतमाद दरकार होता है। अपोजिशन जमातों में मुस्लिम लीग नून 84, पीपल्स पार्टी 56, MMA 14, MQM 7, BNP 4, PAP 4, ANP जमहूरी वतन पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 114 आजाद अरकान को शामिल करके अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 176 बनती है। अपोजिशन ने सिंध हाउस में होने वाले हालिया इजलास में 196 अरकान कौमी असम्बली की मौजूदगी का दावा किया है। इस सब खेल में जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने भी अभी तक गैर जानिबदार रहने का फैसला कर रखा है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 196 अरकान शो कर दिए। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी MQM ने कप्तान का साथ छोड़ दिया। अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में अक्सरियत खो दी। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर मुतालबा किया गया है कि इमरान खान फौरी इस्तीफ़ा दे दें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पहले कौम से खिताब का फैसला किया, जो बाद में मौखर कर दिया गया। इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि इमरान खान के लिए हुकूमत बचाना मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के 22 अरकान कौमी असम्बली की एंट्री हुई। MQM पाकिस्तान ने गिरती हुकूमत को आखिरी धक्का दे दिया और यूं सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा ने हुकूमत छोड़ दी। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM की क़यादत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नई तब्दीली का साथ देने का फैसला किया है। आज से अपोजिशन के साथ चलेंगे। ऐसे दौर का आगाज़ करना चाहते हैं जहाँ सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी ना समझा जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खान साहब आज इज्जत से ना गए तो कल चले जाएंगे, चाहे आप सिलेक्टेड ही हों, मगर अददी अक्सरियत खो चुके। पाकिस्तान में नए दौर का आगाज़ होने वाला है। दहाइयों बाद अपोजिशन मिलकर बैठी है। 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। बिलावल भुट्टो ने भी मशवरा दिया है कि इमरान खान इज्जत से खुद ही चले जाएं। शहबाज शरीफ 1-2 दिन में वज़ीर आज़म बन जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है सिंध की बेहतरी के लिए बड़े फैसले किए। MQM को हर मामले पर साथ लेकर चलेंगे। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने भी मशवरा दिया है कि इमरान खान इज्जत से खुद ही चले जाएं। शहबाज शरीफ 1-2 दिन में वज़ीर आज़म बन जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है सिंध की बेहतरी के लिए बड़े फैसले किए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 3 साल पहले शुरू होने वाले ड्रामे का आज ड्रॉप सीन हो गया। आलमी साजिश तब हुई जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। आपकी हैसियत ही नहीं कि अमेरिका या कोई मुल्क धमकी दे। चरब जुबानी, झूठ पर मबनी सियासत का खात्मा और सेहतमंद सियासत की बुनियाद डाल दी। अब हमने आलमी एजेंडे को नाकाम बनाना है। जिस ड्रामे का आगाज हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया। जिन दोस्तों ने अभी तक फैसला नहीं किया, वक्त है वो कौमी धारे में शामिल हो। आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी तादाद इस वक्त 175 की है। इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा है। खुद ही साजिश, अब कोई साजिश नहीं है। ड्रामे मत बनाओ। खत आया है, फिर धमकियाँ दिया, किसी ने धमकी नहीं दिया। वो क्या चीज़? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की 2 बार मुलाकात हुई। किसी ने इस्तीफ़ा मांगा है, ना ही वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान मुल्क और कौम के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। ऑपरेशन को लग पता जाएगा इनके साथ हो क्या गया है। शहबाज गिल बोले, इमरान खान को बहुत अरसे से सॉफ्ट सिग्नल दिए जा रहे थे, सर नहीं झुकाया तो धमकी में खत आ गया। एब्सोल्युटली नॉट की जो भी कीमत हो आखिर तक लड़ेंगे। और मुलाकात हुई, 2 दफा हुई है। ना तो किसी ने उनसे रिजाइन मांगा, ना ही वजीर आजम रिजाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी। लग रहा है हम पीछे है नहीं पीछे। जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। इनको पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। ये जो खत है इसको पार्लियामान के सामने इन कैमरा सेशन में रख रहे हैं। जिस किस्म की धमकियां, जिस किस्म का प्लान इस खत में दिया गया है, वो किसी भी सॉवरेन मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान
लड़ेगा पाकिस्तान की कौम की इज्जत के लिए। सॉफ्ट सिग्नल तो बहुत देर से इमरान खान को दिए जा रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं है, फिर भी उन्होंने सर नहीं झुकाया, तो आखिर पर फिर ये एक सख्त किस्म का खत लिखने की कोशिश की गई। जो कीमत भी हुई इमरान खान देगा, लेकिन वतन की, आपकी कौम की खुददारी के ऊपर सर नहीं झुकाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा को खुफिया मरासला दिखा दिया। धमकी अमेज़ खत अरकान को टेलीप्रॉम्प्टर पर दिखाया गया। इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में भी खत से मंदरजात से आगाह किया। बताया कि खत अस्करी हुकाम से शेयर किया जा चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला भी कर लिया। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत को धमकी अमेज़ खुफिया खत दिखाया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं खत से इमरान खान को सियासी फ़ायदा हो सकता है। मुल्की सियासत में एक और खत के चर्चे। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना अरकान को धमकी आमेज खुफिया खत दिखा दिया। काबीना के खुसूसी इजलास की अंदरूनी कहानी न्यू न्यूज ने जान ली। कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। जराये के मुताबिक काबीना अरकान को खुफिया मुरासला टेली प्रॉम्प्टर पर दिखाया गया। वजीर आजम इमरान खान जल्द कौमी सलामती कमेटी इजलास बुलाएंगे। खुफिया मुरासला कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश करने का फैसला किया गया। इजलास में ये भी फैसला हुआ कि कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में शाह महमूद कुरैशी खुफिया मुरासले पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब कहते हैं कि खत में संगीन नताइज की धमकियाँ दी गयी। धमकी को तहरीक अदम एतमाद के साथ जोड़ा गया है। उस धमकी के अंदर मल्टीपल टाइम जो है नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया गया है। खुफिया खत पर वजीर आजम ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात भी की और उन्हें खत के मंदरजात बताए। इमरान खान ने कहा खत पर नेशनल सिक्योरिटी के कानून लागू होते हैं। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक खत में अदम एतमाद का वाज़ेह जिक्र है। खत से इमरान खान को सियासी फायदा हो सकता है। डायरेक्टली मेंशन है इस खत के अंदर, इस अदम एतमाद का मेंशन है और उन्होंने कहा कि अगर अदम एतमाद से इमरान खान को हटा देते हैं तो सारा कुछ माफ हो जाएगा। जराये के मुताबिक खुफिया खत साबिक सफीर असद मजीद ने दफ्तर खारजा को भेजा। असद मजीद ने अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया से मुलाकात के बाद मुरासला भेजा। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नामजद होने के बाद सरगर्म इस्लामाबाद से लाहौर आते ही चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ नून लीग के अरकान असम्बली से मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने ख़वातीन अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया दिया। चौधरी परवेज इलाही के इशाये में सानिया कामरान, मुसरत जमशेद चीमा, सिमापिया ताहिर और दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान पंजाब असम्बली स्पीकर पंजाब असम्बली से मिले। तीनों ने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग नून के MPA मौलाना ग़ियासुद्दीन, फैसल नियाज़ी और अशरफ अंसारी ने मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी भी मुलाकात में मौजूद थे। नून लीग की अरकान पंजाब असम्बली ने कहा कि नून लीग के 16 MPA भी चौधरी परवेज इलाही के साथ चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त इजलास से खिताब कर रहे हैं। Acting as a humanitarian bridge to Afghanistan. In view of the dire humanitarian situation and a potential economic meltdown, Pakistan hosted an extraordinary session of the OIC Council of Foreign Ministers in December 2021. The session resulted in a number of concrete decisions, including the establishment of a humanitarian trust fund and appointment of a special envoy. In a nutshell, all our efforts have been geared towards promoting stability and mitigating humanitarian and economic fallout as the foremost priorities. Excellencies, going forward, it is essential to take a broader view. While the war in Afghanistan has ended, millions of Afghan children today still face starvation. Afghan hospitals face acute shortages of medicines, equipment and personnel. Owing to this perilous situation, we stress the humanitarian imperatives must take precedence over political considerations. While there may be valid political concerns, the fundamental need is to focus on humanity as well as the well-being of 40 million Afghan people. I should underline here that the frozen Afghan foreign bank reserves belong to the Afghan nation and their utilization should be the sovereign decision
of Afghanistan. We will continue to support Afghanistan's access to its frozen assets so that these precious resources can be utilized for the welfare of the Afghans. Excellencies, today, in our view, there is a historic opportunity after 40 years of conflict to finally establish sustainable peace in Afghanistan. The process could be consolidated by working together in a constructive partnership. At this transformational वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम का फ़रोग़, इंसानी मसाइल और मुआशरती मुज़र असरात से बचाव के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है। अहम खबर आपको दें, शुमाली वज़ीरिस्तान तूरी मीर अली स्पिनवाम VC1 में मुबैना प्रीपोल रिगिंग का इंकशाफ हुआ है। मुखालिफ उम्मीदवार ने PTI तहसील चेयरमैन उम्मीदवार पर इंतखाबात से कबल धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। तहसील चेयरमैन के लिए आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन फराज के हिमायतियों ने 2 ख़वातीन को पुलिस के हवाले किया। PTI उम्मीदवार शेरबाज खान पर मुबैना जाली पोलिंग अमले के ज़रिए प्रीपोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदा ज़ीशान सैयद ज़िला अपरदीर के गनोड़ी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज से शुरू होने जा रहा है। बाकायदा पोलिंग का अमल जो है वो 8 से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे जो बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है, ये खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में इलेक्शन जो है वो आज से शुरू होंगे। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो पोलिंग स्टेशन गनोड़ी का मुकाम है, जो PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबजादा सिबगतुल्लाह और जमात इस्लामी की MPS नायतुल्लाह खान का आबाई हल्का है। यहाँ पे PTI और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। तहसील जिला दीर के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो तकरीबन 5 तहसीलों पे PTI, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। जिस तरह पहले फेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ था और पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की नशिस्तें ज़्यादा हुई थी। अब देखते हैं कि क्या तब्दीली सरकार दूसरे फेज में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दो कि चूंकि आज यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात भी है खैबर पख्तूनख्वा में और साथ साथ इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है उसमें भी जोर आ गया है और जो अपोजिशन जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी दीगर मुतहिदा अपोजिशन के साथ मिल गए। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में तो उनको शिकस्त हुई थी, अपसेट हुआ था, लेकिन दूसरे मरहले में क्या तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवारान है वो कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ पे भी दूसरे मरहले में उनको अपसेट का सामना होगा। जी रुख करते हैं लोअर दीर के बालाई इलाके लुकमान बांडा का, जहां पर बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर 3132 मर्द खवातीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब बादशाह से। जी नवाब बादशाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई इलाका लुकमान बांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंतखाबी अमल जो है वो पहुँच चुका है और पोलिंग का अमल जो है बाकायदे तौर पर शुरू किया गया है। लुकमान बांडा में वोटरों की तादाद 3132 है, जिनमें से मर्द वोटरों की तादाद 1828 है, जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 1304 है, जिनके लिए 7 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। अगर बात की जाए लोगों की जोश व खरोश की, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। पोलिंग स्टेशन से कुछ फासले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने कैंप्स लगाए हैं, जिनको अपने अपने जमातों के झंडों और पोस्टर से सजाया गया है। इन कैंप्स में वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए और उसके साथ साथ उनको वोट कास्ट करने का तरीका भी सिखाया जा रहा है। या मैं आपको ये भी बताता चलो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए सिक्योरिटी के पूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। पोलिंग का ये अमल आज सुबह 8 बजे से लेकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी जिना अस्पताल कराची में 24 साल बाद लेथोट्रेप्सी का शोबा फाल कर दिया गया। माहिरीन कहते हैं कि अब गुर्दों से पथरी निकालने के लिए मुफ्त लेज़र सर्जरी की जाएगी। मज़ीद शफ़क़त अजीज़ की रिपोर्ट में। अस्पताल के शोबे अमराज़े गुर्दा में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए शोबे के सरबराह डॉक्टर शहजाद का कहना था कि लिथोट्रिप्सी दौर जदीद का ऐसा अमल है जिसमें गुर्दे या गुर्दे की नाली में मौजूद छोटी पथरी को मजीद तोड़ा जाता है और रेत के जरे जितनी बारीक होने के बाद यूरिन के जरिए जिस्म से निकल जाते हैं। अगर कोई पथरी बाहर से ना टूट पाए
अगर वो बहुत सख्त पथरी हो तो हम फ्लेक्सिबल यूरोटोस्कोप डालकर उसके गुर्दे के अंदर जाकर पथरी को देखकर, चाहे वो कितनी भी सख्त पथरी हो, हम लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ उसको सैंड कर सकते हैं, रेत बना सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिना अस्पताल के सरबराह डॉक्टर शाहिद रसूल ने बताया कि निजी अस्पतालों में ये ऑपरेशन काफी महंगा है, जबकि जिना अस्पताल में ये सर्जरी मुफ्त की जा रही है। एक सेशन के 40 से 45 हज़ार रुपए होते हैं और 45 से 75 हज़ार, और दूसरा अगर आपको दूसरा सेशन करना पड़े तो फिर उस सूरत में आप मज़ीद दोबारा पैसे दें, और जो इंट्रा कॉर्पोरियल जो कि लेज़र के ज़रिए तोड़ा जाता है उसका कॉस्ट ही कहते हैं तकरीबन 3.25 लाख रुपए तक है। माहिरीन का कहना था कि इस जदीद तरीका इलाज से मरीज को बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मरीज को चंद घंटों में इलाज करके घर भेज दिया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में 10 साल बाद सोने और तांबे के सबसे बड़े मंसूबे पर दोबारा काम शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को चलाने से मुल्क कितने बड़े बहरान से बच गया और इसके क्या फ़वायद हैं, रिपोर्ट करेंगे कोयटा से अस्मत अमान समलानी। जिला चागी में वाक़ सोने और तांबे के बड़े मंसूबे पर तनाज़े के बायस एक आलमी सालिसी फोरम से मुल्क को $6 अरब का जुर्माना हुआ था। वजारत खजाना के तर्जुमा मुजम्मिल असलम के मुताबिक दीगर चार्जेस के साथ जुर्माने का मजमूई रकम $11 अरब थी। अदम अदायगी की सूरत में बैरून मुल्क पाकिस्तान के असासों को नीलाम करके कंपनियों को अदायगी की जाती। ताहम हुकूमत ने मुज़ाकरात करके मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी टेतियान कापर कंपनी के एक शराकतदार बेरक गोल्ड को दोबारा काम पर आमादा कराया। अगरचे वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिकॉर्डे को एक संग मील करार दिया, ताहम इस भी इख्तिलाफ के रुकन नसरुल्लाह ज़ेरे का कहना है कि मंसूबे में न सिर्फ बलूचिस्तान का हिस्सा कम है बल्कि इस मुआहदे को अवाम के सामने लाना चाहिए। अभी भी जो मुआहदा हुआ है उसको ओपन करना चाहिए कि मुआहदा हुआ है, कैसा मुआहदा हुआ है, ये अवाम के सामने आना चाहिए। बेरक गोल्ड के सरबरा मार्क बेस्टो कहते हैं कि मुआहदे से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आएगी। This is truly a major event, not only for Barrick as an investor in your country, but also for Pakistan, because this is one of the, in fact, the biggest single investment in your country. मुआहदे के तहत मुनाफे में से 50% बेरक गोल्ड का होगा, जबकि 25% वफाकी और बलूचिस्तान का होगा। ताहम बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है रॉयल्टी और दीगर टैक्सेस समेत इसका मजमू हिस्सा 33% बनेगा। वजीर सेहत सैयद एहसान शाह ने नए मुआहदे से काफी हद तक मुतमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमैन है कि इससे बेहतर डील नहीं हो सकती। मंसूबे के बायस मुल्क में $10 अरब की सरमायाकारी आएगी, जबकि इससे रोजगार के 8000 मौके पैदा होंगे। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सादकाबाद में गंदम कटाई का रवायती तरीके से आगाज़ हो गया। किसानों ने ढोल की थाप पर खुशियां मनाकर कटाई का अमल शुरू किया है। गंदम की अच्छी पैदावार से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सादकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद शाबान। किसानों को अपनी मेहनत का समर हासिल करने के दिन आ गए। सादकाबाद में गंदम की कटाई का अमल शुरू कर दिया गया। ढोल बजाकर खूब खुशियां मनाई गई। गंदम की कटाई का अमल ढोल की थाप पर शुरू हुआ। किसानों और महकमा ज़राअत की टीम ने सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियां लहराकर किसानों की हौसला अफजाई की। गंदम की शानदार पैदावार पर जमींदार भी खुश हैं। ढोल की थाप पर मजदूरों ने इब्तदा की कटाई की। मेरी तहसील में 2,03,000 एकड़ रकबे पर इस साल गंदम काश्त थी। किसानों का कहना है इस साल पैदावार में 10 से 15 मन फी एकड़ इजाफे का इम्कान है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपए मुकर्रर करने पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। हमने आज अपनी गंदम की कटाई का आगाज किया है। हुकूमत का रेट है वो 2200 रुपए है, तो इस वजह से हम खुश हैं। रवां सीजन तहसील भर में 2,03,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है। सादिकाबाद में गंदम की कटाई से किसानों के साथ साथ मजदूरों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शाबान, न्यूज़ सादिकाबाद। डीरबाला में पाक अफगान सरहदी इलाके के बाद किस्मत गरीब मेहनत का सरदार अली के 3 जवान साल बेटे मौजी मर्ज का शिकार होकर मफलूज हो गए। वालिद मेहनत मजदूरी करके सारी जमा पूंजी लगा चुका, लेकिन अब मजीद इलाज जारी रखने की सकत नहीं। मुतासर ख़ानदान ने हुकूमत और मुखैर अफराद से माली ताउन का मुतालबा किया है। शीनी हजरत की रिपोर्ट देखिए।
یہ ہے پاک افغان بارڈر کے علاقے ہاتن درہ کا سردار علی، جس کے 3 بیٹے بچپن سے معذوری کا شکار ہیں، جو پیدائش کے 5 سال بعد موذی مرض میں مبتلا ہو کر مفلوج ہو گئے۔ 62 سالہ والد سردار علی کا کہنا ہے محنت مزدوری کر کے بچوں کا علاج کرایا، لیکن غربت کے باعث اب مزید علاج کرانے کی سکت نہیں، جبکہ بیوی علیل ہونے کے باعث گھر کے کام سے قاصر ہے۔ والد کا کہنا ہے بیمار بیٹوں کی وجہ سے زندگی میں کبھی عید کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ غریب محنت کش سردار علی نے اپنے بیمار 3 بیٹوں کے علاج کے لیے حکومت اور مخیر حضرات سے مالی تعاون کی اپیل کی ہے۔ شیریں حضرت، نیو نیوز، دیر بالا۔ سپیریئر یونیورسٹی سٹی کیمپس کلمہ چوک لاہور میں فریشمین پوسٹرز ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ایگزیبیشن میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایگزیبیشن میں طلباء و طالبات نے اپنے اپنے شعبے سے وابستہ مضامین پر پوسٹرز تیار کیے۔ تفصیلات علی مرزا سے۔ سپیریئر یونیورسٹی سٹی کیمپس کلمہ چوک لاہور میں فریش مین پوسٹرز ایگزیبیشن، طلباء و طالبات نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلق پوسٹرز تیار کیے اور سٹالز لگائے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر پروفیسر چودھری عبدالخالق کی بطور مہمان خصوصی شرکت، نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں کیش انعام تقسیم کیے۔ چودھری عبدالخالق نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ بچوں کو سپیریئر بنانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب، ان کا ویژن تھا کہ کیسے ہم پاکستان کو سپیریئر اور سپریم بنا سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ٹیچر، ہماری مینجمنٹ، ہمارے یہ اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کی صف میں سے نکل کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں انشاءاللہ جائے گا۔ ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی سٹی کیمپس ڈاکٹر خواجہ حشام الحسن کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد چیئرمین سپیریئر یونیورسٹی چودھری عبدالرحمان کے ویژن کے مطابق طلباء و طالبات کو ہر شعبے میں آگے رکھنا ہے۔ آج کی ورک شاپ میں تمام اسٹوڈنٹس نے جو تقریباً 400 سے اوپر تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی اور 40 سے اوپر سٹالز لگے ہیں، تو اس میں یہ بچے جو ہیں یہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں اپنا ویژن لائف کا اور وہ کیسے اس کو میٹ کریں گے اور ان کی ویلیوز کیا ہیں۔ طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں اس ایگزیبیشن میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ سپیریئر یونیورسٹی نے ایگزیبیشن آرگنائز کی ہے، بہت زیادہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس نے بہت اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے۔ نئے آنے والے بچوں کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے اور آئی گیس ہر یونیورسٹی والوں کو یہ کرنا چاہیے۔ ایگزیبیشن میں شریک پروفیسرز کا کہنا تھا کہ وہ سپیریئر یونیورسٹی کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین ممتاز علی کے ساتھ علی مرزا، نیو نیوز لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔